पहले तो मतलब इसमें ना अपने जो इंट्रो है उसमें मतलब मेरी ये सलाह रहेगी कि जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो हटा दीजिए, बिकॉज कंप्यूटर की नॉलेज बहुत वास्ट होनी चाहिए। वो इतना लाउड भी नहीं होना चाहिए कि साइड वाली क्लास के बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी कोई चीज़ ऐसा मत कहिए, जैसे आपने कुछ चीज़ें गलत भी कही तो वो आप मत कहिए। अगर आपको नहीं आता तो उसमें भी आप कह दीजिए कि सर ये मुझे नहीं पता। जो हमारे लेटेस्ट स्कीम है और गवर्नमेंट इस वक्त एजुकेशन के फील्ड में क्या कुछ कर रही है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। Yes, please. Thank you. Good morning, sir. Good morning. Have a seat. Thank you, ma'am. What's your name? My name is Anudaya. Anudaya. Anu, introduce yourself. Okay. First of all, I'm very thankful for giving me the opportunity to introduce myself. I am Anudaya. I belongs to Haryana, district Sonipat, village Nahari. I have done my JBT, or you can say diploma in education from MP board. After that, I have cleared CTET 6 times. I have 8-year experience in RK International School as a PRK teacher. I also awarded by Dr. Kiran Bedi ma'am at a state level in a poster making competition. As well as I have cleared an interview for the DAV school last year. And my strength are I am calm, patient, and self-confident and hardworking girl. That's all about myself. Great. My first question to you is that why you want to be a teacher at KVS? Ma'am, I want to be a teacher because as a teacher or in a teaching profession, a teacher should learn throughout the life. And you can say that a teacher has to learn means lifelong learner. And also we can learn so many things about the different cultures, about different customs in KV schools. If I want to join in any other school, we can learn about only a single custom, not about the different custom. That's why I want to join the KV school. All right. As you have mentioned, being calm and patient as one of your qualities, Yes. which would help you in dealing with the students at primary level. Could you tell me some more qualities you would be able to inculcate in the children? Ma'am, according to me, we can make a student like creative. If a student has the ability of the creativeness, he or she can do everything. And next thing I want to include a student should be by learning from the daily routine things, as NCF and the National Education Policy already told us ki we should make a student like he or she can learn all the things from their daily routine lives. But you find that students are very notorious, so how will you motivate them to learn every day? Ma'am, there are so many things by which we can make a student to learn the things in a daily routine life. For example, if we want to teach a student like addition or the subtraction, we can take to the garden, or he or she can, and we can say that count all the trees, count all the plants and flowers and so many things. Same example in the EVS also, we can take to the fields also, and so we can teach them about the different systems. And for example, if we want to teach them the water cycle, we can take to our kitchen also. Like in the school we have the kitchen also, so we can show that the evaporation, condensation. By this method we can teach our students. Great. Anu, can you tell me the full form of NCERT? Yeah, ma'am. National Council of Educational and Training Institute. Try to recall it once again. National Counseling Educational Training Institute. Research and Okay. Training Institute. Anu, can you tell me who is our education minister? Ma'am, Mr. Dharmendra Pradhan. All right. You might be hearing the word G20 going on everywhere. What is this G20 all about? What does this G20 stands for? Sorry. No issues. Which is your favorite sport? Ma'am, my favorite sport is wrestling. Wrestling. All right. So at primary school, as you told me that you would be using various creative ways to indulge the students. Yeah. So with the help of using sports as one of the creative medium, how will you be able to teach them? Ma'am, for example, if we want to teach them the habits like the brotherhood and the helpingness, so we can take to the playground, and we can say that whether in the condition you can lose or the win.
वी शुड ऑलवेज हैव द, मतलब दूसरे बंदे के लिए ये होना चाहिए कि हाँ हमने जीत लिया है, हमने किया है। और उसके अलावा गेम्स के थ्रू हम बच्चे को मतलब कि हेल्पिंगनेस सिखा सकते हैं, ब्रदरहुड सिखा सकते हैं। और डेफिनेटली नहीं है कि एक स्पिरिट होती है कि बच्चे के अंदर बिगनिंग की ही नहीं होनी चाहिए कि अगर वो लूज भी कर जाता है तो भी उसको दूसरे के लिए हैप्पी होना चाहिए। जी। But you know, if we lose, we often tend to get a bit upset. We feel down. And और बच्चे हैं तो definitely they are going to feel down. So how will you motivate them, keep up their level of motivation to continue that learning? मैम उस कंडीशन में हम बच्चों को यही कहेंगे कि अगर आपने अपनी बार यूज किया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमारे कुछ लैकुनास होंगे, तो वी शुड वर्क ऑन दैट प्रॉपर लैकुनास एंड आफ्टर दैट वी विल डेफिनेटली डू समथिंग बेटर इन नेक्स्ट टाइम। Okay, thank you. Okay, so have you heard about the concept बाला? अगर हम बात करते हैं कि रेसलर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मतलब इस गेम को यूज़ करके बच्चों को, जैसे मैम ने अभी कहा कि और क्या क्या आप सिखा सकते हैं, मतलब एज ए सब्जेक्ट को आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि हाँ हम रेसलिंग के थ्रू कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाएं और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हम बच्चे को रेसलिंग के थ्रू सिखा सकते हैं। जब भी कोई प्लेयर होता है वो अपना कोई भी पॉइंट गेन करता है तो उसके थ्रू हम उसको एडिशन सिखा सकते हैं। गुड। और जब भी कोई रेसलर अगर उसमें जाता है, अपनी रिंग में जाता है, तो जब वो अपना परफॉर्मेंस करता है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर उससे पॉइंट मल्टीप्लाइड हो जाते हैं, तो वहाँ से हम उसको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी समझा सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट आपने अभी बताया एनसीएफ के बारे में, तो आप ये बताइए कि जो लास्ट एनसीएफ है वो कौन सी ईयर में दिया गया है? 2005 में। आपने अभी एनसीएफ 2005 की बात करी, इसके एम्स बताइए कि क्या कौन से एम्स हैं वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स? टीचिंग एनसीएफ सबसे पहले यही कहता है कि हमें जो अपनी एजुकेशन होता है उसको हमें डेली रूटीन लाइफ से ही जोड़ना चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चा अपने डेली रूटीन लाइफ से ही सब चीज़ों को सीखे। और उसके अलावा एनसीएफ सब चीज़ों को मतलब बच्चे को यही बोलता है कि मैथमेटिक्स को हमें फन की तरह पढ़ाना चाहिए। उसको बच्चों को मेनली हमने देखा है कि बच्चों के लिए मैथमेटिक्स एक बर्डन के रूप में होता है। सो मेनी स्टूडेंट कैन फेस अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, तो उसको हमें फन तरीके से समझाना चाहिए ताकि बच्चों को वो प्रॉब्लम्स ना आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अभी बताया, तो आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस मतलब मेरे ख्याल से इसमें नहीं है फिर अभी? 8 year experience in RK International School as a primary teacher. ओके फाइन। तो आप वहाँ पे मैथ्स ही पढ़ाती होंगी? सर EVS मैथ्स एज अ PRT टीचर। एज अ PRT टीचर। तो फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है वहाँ पर? मैथमेटिक्स है। चलिए, तो मैथमेटिक्स के लिए आप कोई भी एक टॉपिक के ऊपर डेमो देना चाहेंगी, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक हो? विच टॉपिक? लेंथ या पैरामीटर सब्जेक्ट। ओके, so first of all use anything here as a TLM and you can show us. Yeah, you can use the board. Good morning, sir. I can use as a teacher. Yes, we are your students. You are our teacher. हम आपके स्टूडेंट हैं। Okay. Good morning, everyone. Good morning. Okay, today आज मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। अभी जैसे मैं स्कूल आ रही थी तो मुझे रास्ते में एक लड़की मिलती है, उसका नाम था शिवानी। क्या नाम था उसका? शिवानी। तो वो बड़ी प्रॉब्लम में बैठी हुई थी और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पापा उसे कहते हैं कि उनके खेत में, आप सबको खेत का तो पता ही है ना? हाँ जी सबके मैम। पास खेत है। हाँ जी अभी खेत में क्या उगा हुआ है ये बताइए आप मुझे। अभी कल्टीवेशन हो रही है ना, कटाई हो रही है ना खेतों में, तो बताओ क्या हो रहा है खेतों में? गेहूं का। हाँ एग्जैक्टली, तो गेहूं की कटाई हो रही है। तो अभी उनके खेत में गेहूं कटे नहीं है, तो उनके खेत में क्या होता है कि कुछ एनिमल्स होते हैं, आपको पता है ना, स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो गली में घूमते रहते हैं। तो वो भूखे होते हैं, उनके पास खाना तो होता नहीं है, और वो उनके खेत में जाके उनकी फसल को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मैम, खेत में वो एक लगाते हैं ना हमारे पेरेंट्स जानवरों को डराने के लिए, क्या सच में उससे डर जाते हैं जानवर? हाँ, बिल्कुल डर जाते हैं, क्योंकि एनिमल्स को तो ये पता नहीं होता कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो इससे क्या होता है कि वो उनको लगता है कि सच में कोई आदमी खड़ा है, वो उससे डर के भाग जाते हैं, वो उनके खेत में नहीं घुसते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके पापा उसको बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे खेत पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम शेयर की। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं उसकी प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन बता सकती हूँ कि उनके खेत में कोई भी जानवर ना घुसे। चलो आप में से बताओ, अपने आइडिया शेयर करो मेरे साथ। तो चारों ओर एक बाउंड्री कर देंगे। ओके, लेकिन बाउंड्री किस चीज से करेंगे कि खेत में एनिमल्स ना घुसे? तार लगा देंगे। कैसा तार लगाएंगे? लोहे का तार। हाँ, लोहे का तार लगाएंगे या कोई ऐसा कटीला तार लगाएंगे ताकि कोई भी जानवर अगर खेत में घुसने की कोशिश करता है
तो वो उसको चोट पहुंचा दी, उसको कहीं पर मैम अगर वो घुसने की कोशिश करेगा जानवर तो उसको उस तार से चोट भी तो लग सकती है ना। चोट लग सकती है, लेकिन उसके लिए हम लोगों के पास बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो ऐसे एनिमल्स की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, उनको दवाइयां वगैरह लगा देते हैं। नहीं तो जब हमें पता चलेगा तो हम भी तो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना। तो मैम हम ऐसा करें क्योंकि उसको चोट लगे? क्योंकि वो हमारे जितना उसको खाना होता है बेटा, उससे बहुत ज्यादा फसल को वो बर्बाद कर देता है। तो ऐसे में तो वेस्टेज हो रही है ना, उस वेस्टेज को बचाने के लिए अभी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है तो हमें वो करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो अब मैं आपको बताती हूँ कि उनका जो खेत था वो किस शेप में था। उसने बताया, शिवानी ने मुझे, कि उनका जो खेत था वो कुछ इस शेप में था। ठीक है, फिर मैंने उससे पूछा कि आप अपने पापा से जाके उसके मेजरमेंट पूछ के आना कि उसकी कितनी लंबाई है और कितनी चौड़ाई है। तो उसने मुझे बताया कि उसकी सारी ये जो वाली साइड है ये उसकी 20 मीटर है, 20 मीटर्स है, और ये वाली जो साइड है उसकी 10 मीटर्स है। ठीक है, तो ये वाली उसने मुझे अपनी मेजरमेंट बताई। तो चलो बेटा आप मुझे बताओ कि अगर उसको अपने खेत में वायर लगानी है तो उसको कितने वायर की नीड पड़ेगी। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। कि जैसे कि जो आपने अभी साइड बताई है, हम इन साइड को क्या कहते हैं? मतलब इनको क्या बोलते हैं? हाँ, इनको इनकी साइड, इनकी हम मेजरमेंट बोलेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है। जैसे अगर ये आपका बोर्ड है हाँ। तो इस बोर्ड की लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, यही इसकी हम साइड बोलेंगे। ठीक है, यही इसकी साइड होती है। तो चलो अब मुझे आप बताओ कि इसकी मेजरमेंट कितनी होगी, उसको कितने वायर की नीड पड़ेगी अपने खेत में लगाने के लिए। मैम 20 + 10 30 + 20 50 + 10 60। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसकी सारी की सारी साइड्स का क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इसका सम कितना आ जाएगा, चलो जल्दी से बताओ। 60। वेरी गुड, इसका सम आ जाएगा 60 मीटर। तो इसका मतलब है कि उस बच्चे को अपने पापा को बताना पड़ेगा कि आप 60 मीटर की वायर लेके आइए, उससे आपके खेत की चारों तरफ की बाढ़ हो जाएगी। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर उस बच्चे को उसके पापा कहते कि हमें इस खेत में डबल वायर्स लगानी है, कितनी वायर्स लगानी है? डबल वायर्स। तो कितनी मीटर की लेंथ की नीड पड़ेगी, अब आप मुझे ये बताइए। 120। कैसे किया? 60 + 60। वेरी गुड। तो इसमें उन्होंने क्या किया, अगर उनको डबल की नीड पड़ेगी, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 60 + 60 120 मीटर आ गया। देखो आज हमने क्या सीखा है, शिवानी की कहानी से आज हमें पता चला है कि जब भी हमें किसी भी चीज की अगर हमें बाउंड्रीज का सम निकालना होता है, बाहर की एक्सटर्नल साइड्स का सम निकालना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब अब तुम्हें इस फिगर से क्या समझ आता है कि पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या होता है पैरामीटर का मतलब? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, अगर मैं आपको कहूं कि जो आपके पास कॉपीज हैं, आप सब मुझे उसका पैरामीटर निकाल के बताइए, तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, अपने पास स्केल लेना पड़ेगा, और स्केल से अपनी साइड्स को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। मेजर करने के बाद फिर आप मुझे बताएंगे। तो ये आपका होमवर्क हुआ। ठीक है, आप थोड़ा सा वहीं पे रुकिएगा। और जैसे आपने बताया अभी पेरीमीटर के बारे में, तो आपने ये जो फिगर ली है, इस फिगर को हम क्या नेम कर रहे हैं, मतलब क्या नेम देंगे? सर फिगर थोड़ी गलत है। नहीं, फिगर जो आपने बनाई है, हाँ, तो इसको हम रेक्टेंगल का नेम देंगे। रेक्टेंगल का नेम देंगे। अच्छा, अगर मान लीजिए जो फील्ड है वो सर्कुलर फील्ड होता, ओके, तो भी आप इसको पेरीमीटर ही कहेंगे? नहीं सर, उसको हम सर्कमफ्रेंस कहेंगे। और सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का मतलब ही पैरामीटर होता है, बट वो सर्कल का पैरामीटर होता है, तो इसलिए हम उसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। हाँ जी। ओके, अच्छा, इसमें ना एक टर्म आ रही है पेरीमीटर। हाँ जी। सो मीटर का मीनिंग क्या है? मीटर एक हमारी मेजरमेंट के लिए एक हम यूनिट यूज करते हैं। ओके, सो मीटर बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मीटर। हाँ जी। अगर मान लीजिए जैसे अभी आपने बोला कि मैं इस कॉपी की मेजरमेंट करता हूँ और स्केल से मैंने मेजरमेंट किया सेंटीमीटर से, हाँ जी। तो क्या मैं फिर इसको पेरी सेंटीमीटर कहूंगा? नहीं, पैरामीटर। पेरीमीटर ही बोलेंगे, ऐसा क्यों? हाँ, अच्छा, अभी जैसे आपने बताया सर्कमफेरेंस, हाँ जी। राइट, उस सर्कमफेरेंस में मीटर भी नहीं आया है ना? हाँ जी। हाँ, तो हमें पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस वो मतलब डिफरेंशिएट मतलब करिए जरा, कुछ बताइए कि दोनों में आपने बता दिया कि दोनों ही क्या है, बाउंड्रीज की लेंथ है,
ठीक है, आपने यहाँ पे बताया कि मीटर जो है आपका बेसिक यूनिट है, तो सरकमफेरेंस में हमने कोई भी यूनिट क्यों नहीं यूज कर रहे, मतलब अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को देखें तो। अच्छा चलिए, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताइए। हाँ बताइए, बताइए आप बताइए, बता रहे थे आप। हाँ बताइए, सरकमफेरेंस का बताइए। जी जी बिल्कुल, कोई नहीं, आप ये बताइए, आपने इसका फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या बताया? 2πr, ठीक है, नोट डाउन करिए। इसमें आपने देखा कि एक टर्म आ रही है पाई, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 and 3.14. 22/7 एंड 3.14। अच्छा, पाई कैसा नंबर है, रैशनल है या इरेशनल? Irrational number. इरेशनल नंबर है, Yes. क्यों है? Irrational number are those numbers which we cannot be converted in the form of p upon q. Which cannot be converted in the form of p by q. But you told me that pi's value is 22/7. So 22/7 is in the form of p by But q. it is an approx value, that's why. It is an approx value. Yeah. So what is the accurate value of pi? Sir, वो डिवाइड करते रहते तो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, बट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए प्रोस्पेक्टिव से एक वैल्यू रख लेते हैं कि ताकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। Okay, so 3.14 also is not the accurate value. Yeah, it an approx value. It is the approx value. Okay, so can you tell me which is known as the pi day? pi का जो दिन है, दिवस है, वो कब मनाया जाता है? No, sir. Who discovered pi? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। So who discovered zero? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। तो आप दोनों ही आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया, Yes. जीरो एंड पाई दोनों। Yes. ओके, सो आप कैन यू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जीरो? अगर आपने बच्चों को जीरो को इंट्रोड्यूस करना है तो आप इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे किस तरीके से? आप बच्चों को बता सकते हैं कि जीरो है क्या? जीरो तो ये बता सकते हैं कि व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग इट इज नोन एज जीरो। जैसे आप गए क्लास में, है ना, जीरो आपने बताया कि अभी आपने बताया एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो हमारा एम होता है वो मैथ्स को डे टू डे लाइफ से रिलेट करना होता है, एंड दिस इज द मेन एम, राइट? उससे पहले आप बच्चों को न्यूमेरेसी भी सिखाएंगे तो जीरो वहां पर आएगा। तो कुछ ऐसा बताइए कि मतलब आप जीरो बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कोई भी एग्जांपल उठाइए डे टू डे लाइफ का, और पहले बी कंफर्टेबल और टेल मी कि आप जीरो को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। Okay, for example, I'm going to the class. Okay, student, how many copy and books you have? For example, one child is telling me कि I have one copy or one book. Okay. So I said कि how many copies or books you have in the total. So he or she will said कि I have 2 books. Okay. When I taken both the books, Okay. so I will ask कि how many books you have now. Okay. So he will say, ma'am, I don't have anything. Okay. So that is a concept comes from here कि when you don't have anything, it is if it is represented by a number, it is called zero. Perfect. Good. Thank you. Sit down. अनु, आपने टीचिंग तो बहुत अच्छी की, काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, और आपने बताया कि आपका इंटरेस्ट जो है वो कंप्यूटर में है। Yes. जो आपने बायोडाटा अपना दिया है हमें, Yes. उसमें आपने जिक्र किया है कि आपने आईसीटी से रिलेटेड भी कोर्स किया हुआ है। Yes, sir. आजकल हम ये देखते हैं कि जो बच्चे हैं उन्हें मोबाइल की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। Yes, sir. बच्चे एक्सेस में मोबाइल का यूज़ करने लगे हैं। Yes, sir. तो इससे हम बच्चों को कैसे, किस तरीके से जो परेशानी उनकी ज़िंदगी में आ रही हैं उन परेशानियों से बचा सकते हैं? जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, हर किसी को आज ये लग रहा है कि जो बच्चा है उसका फोकस समझने पर, पढ़ने पर कम है और मोबाइल का यूज़ ज़्यादा वो बाकी सब चीज़ों में कर रहा है जो कि उसे अपना समय अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए। Yes, sir. तो आप एक टीचर के तौर पे बच्चे की जो आदत आज हो चुकी है मोबाइल को ज़्यादा यूज़ करने की, उस आदत को कैसे आप जो है बच्चा छोड़ पाए, इसके लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे? सर, सबसे पहले तो मतलब कि सबसे पहले हम बच्चे को कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव वर्क देंगे जिसमें मतलब सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट जानना पड़ेगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, किस तरह की क्रिएटिविटी में है। जब बच्चे का इंटरेस्ट और क्रिएटिविटी का पता चल जाएगा तो हम उस बच्चे को उससे रिलेटेड ऐसा कुछ वर्क देंगे ताकि वो बच्चा उस वर्क को फोन के बजाय वो अपना हैंड वर्क का या अपनी खुद की मेहनत का यूज करके उस चीज को सॉल्व कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम बच्चे को बहुत सारी क्रिएटिविटी दे सकते हैं, जैसे मैथ्स में हम बहुत सारे लैब एक्टिविटीज दे सकते हैं जो हम बच्चे को घर पे करने के लिए देंगे, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी देंगे जो थोड़ी इंटरेस्टिंग होगी ताकि बच्चा उनको खुद से करेगा। और अगर इन चीज़ों में बच्चे का धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट होगा तो डेफिनेटली उसका धीरे धीरे एकदम से तो इंटरेस्ट कम ही होगा, लेकिन धीरे धीरे फोन से इंटरेस्ट हटता चला जाएगा और फोकस उसका स्टडी की तरफ आएगा।
नहीं, बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को झूठ भी बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमारी टीचर ने कहा है कि मोबाइल का यूज कीजिए और हमारे टीचर ने जो काम दिया है उसमें हमें मोबाइल को यूज करना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? सर इसके लिए हमें पेरेंट टीचर मीटिंग का मतलब ऐसा होना चाहिए कि जब हमारा स्कूल ओवर हो जाता है तो एटलीस्ट जो पेरेंट्स का और टीचर का जो बात मतलब कॉन्वर्सेशन होता है वो होना चाहिए, चाहे वो फोन के माध्यम से हो या फिर वो डायरी के माध्यम से, ताकि हम बच्चे पेरेंट्स को बता सके कि ऐसा कुछ नहीं है, हम बच्चे का इस तरीके से करें ताकि जो जिस चीज के प्रति हम स्कूल में मतलब वर्क करें वही सेम वर्क पेरेंट भी करे, ताकि अगर दोनों अगर उस चीज के ऊपर कंबाइनली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली वो आफ्टर सम टाइम उसका वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। आपने यहाँ पीटीएम का जिक्र किया है, हाँ जी सर। तो जो पीटीएम होती है वो क्यों होती है, उसका बेस क्या है, किस लिए उसको शुरू किया गया था और पीटीएम की रिक्वायरमेंट है किस लिए? सर पीटीएम की रिक्वायरमेंट में एक बेस पेरेंट और टीचर का ही एक मीटिंग होती है। इसमें जो पेरेंट्स होता है वो अपनी मतलब जो टीचर होता है वो अपने बच्चे की फीडबैक बताता है पेरेंट को कि भाई ये है, और उसके कहीं ना कहीं कोई जो लेकुनाज होते हैं वो बताता है, तो वो दोनों मिलके उस बच्चे के अंदर जो जो कमियां होती हैं वो लेकुनाज होते हैं उन चीज़ों को अप करने के लिए, उन चीज़ों से एक बच्चे को बाहर निकालने के लिए ही की जाती है, ताकि एक बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट अगर वो कहीं पर स्टक हो रही है, कहीं रुक रही है, तो वो उन चीज़ों को पॉइंट आउट करे। और अगर दोनों साइड वालों मतलब पेरेंट और टीचर दोनों को उन चीज़ों का पता होगा तो वो बहुत साइड वर्क करके उन चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं बच्चों को। अच्छा, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ पेरेंट्स आते हैं और वो पेरेंट्स आकर ये कहते हैं कि जो बच्चा है ये घर पे बोलता बहुत कम है, हाँ जी। और आप पेरेंट्स को कह रहे हैं कि ये तो क्लास में बहुत ज्यादा बोलता हाँ है, जी। हमें तो कई बार कहना पड़ता है कि बेटा चुप हो जाइए। ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो ये जो सिचुएशन आपके सामने है कि आप पेरेंट्स को ये कहने जा रहे हैं कि आपका बच्चा बोलता बहुत ज्यादा है क्लास में, कई बार तो क्लास को डिस्टर्ब भी करता है, और पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं ये तो घर में बहुत कम बोलता है। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? और जो पेरेंट्स हैं वो सच बोल रहे हैं, वो झूठ नहीं बोल रहे, तो ये इस तरीके की सिचुएशन क्यों बनती है कि अलग अलग जगह पर बच्चे के अलग अलग बिहेवियर हमें देखने को मिलता है? सर इसका मेनली पर्पस यही मतलब मेनली चीजें यही देखने को मिलती है कि अगर हमारा जो बच्चा होता है अगर वो हम क्लास में ज्यादा बोल रहा है तो डेफिनेटली जो उसका फ्रेंड सर्कल है वो उसके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है, ताकि वो अपने व्यूज को उनके आगे शेयर कर पा रहा है, लेकिन उसको घर पे वही माहौल नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से वो अपने व्यूज को अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें उसका बोलना थोड़ा कम कराना है या उनका फोकस इन चीजों से हटाना है तो हमें उसकी कुछ टाइम के लिए सीट को अलग अलग बच्चों के पास भेजना चाहिए, ताकि हम उन चीजों को ऑब्जर्व करें कि क्या ये चीज वाकई में वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, आपने यहाँ पर सीट का जिक्र किया है, हाँ जी। तो आपने सुना होगा कि हमारे देश के अंदर एक धारणा रही है आज से पहले, जो कि आपने खुद भी जब आप स्कूल में गए होंगे ऐसा देखा होगा कि जो लड़के हैं उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए, लड़कियों के लिए अलग स्कूल होने चाहिए, और फिर अगर स्कूल एक भी कर दिया गया है, बहुत बार ऐसा कहा गया है कि नहीं स्कूल जो है वो मर्ज कर दिए जाएं, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। अब क्लास में भी जब लड़का और लड़की एक साथ में होते हैं, बैठे होते हैं, तो उनके लिए अलग अलग लाइन बना दी जाती है, अलग अलग रो रहती है। तो जो सीट होती है, सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, वो लड़का और लड़की जो है उनके लिए अलग अलग होने चाहिए, या फिर एक लड़का और लड़की उनको एक साथ एक डेस्क पे भी बिठाया जाना चाहिए? आपका क्या कहना है? सर अकॉर्डिंग टू मी ये हमारी एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग हो गई है कि हमारी सोसाइटी की सोच ऐसी थी कि पहले के टाइम पर जो रूढ़िवादी सोच जिसको हम बोलते हैं कि लड़के और लड़की को एक साथ नहीं बिठाना चाहिए, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो मतलब फ्यूचर जनरेशन आ रही है उसकी भी एक ऐसी थिंकिंग होती है कि लड़कियां मतलब जो एक प्रेजुडिस बन गया माइंड में वो सेट हो जाता है। अगर हमें उसे ब्रेक करना है और सोसाइटी की अगर हम कहते हैं कि लड़के लड़की को समान लेके चलो, तो हमें अकॉर्डिंग टू मी लड़के लड़की को एक साथ बैठना चाहिए, ताकि उनके जो माइंड सेट होते हैं कि ये चीज ऐसे या बहुत सी बार हमने सुना लड़की नहीं कर सकती लड़का नहीं कर सकता, तो उन चीजों को लेके आने के लिए हमें उनको कंबाइन बिठाना चाहिए, और ताकि जो सोच है वो भी ठीक होगी और फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी थिंकिंग वगैरह सब। तो आपका कहना है कि जो एजुकेशन है और एक्सपीरियंसेस जो हमारे होते हैं ये हमारी सोच में चेंज लेके आते हैं। यस। चलिए, तो आपसे एक प्रश्न मैं करता हूँ, आपके क्लास के अंदर आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ जी सर। उन बच्चों को पढ़ाते समय आपको कभी ऐसा लगा कि कोई एक बच्चा ऐसा है वहां पर जो बच्चा बाकी बच्चों की लंच चोरी कर लेता है? यस सर। जब बाकी बच्चे या तो प्रेयर में गए होते हैं वो प्रेयर में नहीं जाता है, प्रेयर में जाता है तो वहां से जल्दी आ जाता है, या बाकी बच्चे जो हैं वो उनका गेम पीरियड कहीं खेलने के लिए गए हैं तो वो बच्चा जल्दी आ जाता है या वहीं कहीं छुप जाता है और बच्चों का लंच चोरी करता है और उनका लंच खा लेता है, उनका खाना खा लेता है।
अब आपके सामने जब ये सिचुएशन आई है और एक बार नहीं बार बार आई है, Yes, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो रीजन पता होना चाहिए कि वो बच्चा लंच चोरी क्यों कर रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे मेरी क्लास में भी फेस हुई थी कि बच्चे ऐसे टिफिन चोरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये होती है कि हो सकता है कि उस बच्चे की मम्मी उसको खाना बना के टाइमली ना देती हो। बहुत सारी मेरे जो शहर की लेडीज है वो लेट उठते, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को टिफिन नहीं देती थी। काफी जगह नहीं, हम ये कहते हैं कि वो जो बच्चा है वो तो गांव का है। अच्छा, हाँ। फिर सर क्या? मेनली उसका रीजन पता करेंगे कि वो घर से लंच लेके आता है नहीं लेके आता है। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये फेस करेगा, अगर वो लंच लेके भी आता है और वो अपना लंच नहीं कर रहा है किसी दूसरे बच्चे का, तो उसके पीछे का रीजन पता करेंगे। हो सकता है उसको अपना लंच टेस्टी ना लगता हो, बोरिंग लगता हो, दूसरे बच्चों का लंच टेस्टी लगता हो। फिर उसकी जो कमियां होंगी फिर उसके पेरेंट्स के साथ शेयर करके फिर उस चीज का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। अभी आपने यहाँ पे बोरिंग वर्ड यूज किया है। हाँ जी। जब आपकी फर्स्ट क्लास होती है तो फर्स्ट क्लास में बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। जैसे मैं भी आज जो है, आप हमारी टीचर है यहाँ पर, बड़ा एक्साइट हूँ कि हम नई मैडम से पढ़ेंगे, नई मैडम से पढ़ेंगे। आप आए हैं, आपने पढ़ाया, हमें अच्छा लगा। लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ने लगती है, 1 क्लास 2 क्लास, आपको बच्चों को पढ़ाते हुए 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चे बोर होने लगते हैं। तो उस सिचुएशन में आप किस तरीके से क्या कुछ करेंगे कि बच्चों में एनर्जी का लेवल हाई बना रहे, बच्चे मोटिवेट बने रहें, बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होता रहे और बच्चे आपसे पढ़ने के लिए लगातार अपनी सोच बना करके रखें। लेकिन सिचुएशन जो आमतौर पर देखी गई वो ये देखी गई कि कुछ ही टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को इस तरीके के भावों के साथ में रख पाते हैं कि हाँ, हम तो अपने टीचर का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे भागने भी लगते हैं टीचर से। तो आपकी क्लास में बच्चे जो है वो 6 महीने के बाद में बोर हो रहे हैं, बच्चे आपसे दूर भाग रहे हैं, आप क्या करेंगे सिचुएशन में? सर सबसे पहले तो अगर बच्चे मुझसे दूर भाग रहे हैं तो डेफिनेटली वो मुझसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपना बच्चों के बीच में कनेक्शन जनरेट करूंगी, चाहे वो मैं एक मतलब कि प्यार वाली भावना से करूँ, जिसको हम कहते हैं कि एक मदरहुड वाली भावना होनी चाहिए एक प्राइमरी टीचर में, ताकि वो बच्चों के साथ मिलजुल के रह सके, ताकि उन बच्चों को जो घर पे एक अपनी माँ से जुदा होने के बाद जो फीलिंग्स आती है वही चीज़ वो मेरे से जुदा होने के बाद वो फील करे कि हमारी टीचर है। दूसरी चीज़, अगर बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ाई को लेके बोरिंग फील करते हैं, तो अगर ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे बोरिंग फील करते हैं, तो उनको हम ट्रिप पे लेके जा सकते हैं, गार्डन में लेके जा सकते हैं, लैब में लेके जा सकते हैं, या हम उनको आजकल जैसे हमारी स्मार्ट क्लासेस चल रही है तो उनका यूज़ करके हम बच्चे को टीच कर सकते हैं वहाँ पे। तो बच्चे का जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जो थोड़ा हट जाता है कनेक्शन, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जनरेट हो जाता है। और उन सबसे पहले एक मदरहुड वाली चीज़ होनी चाहिए ताकि बच्चों को मैं अपने साथ कनेक्ट कर पाऊँ। जब बच्चे मुझसे कनेक्ट होंगे तो डेफिनेटली वो फिर मुझसे बोर कभी भी नहीं होगा। क्यूरियोसिटी जो होती है, जानने की इच्छा, यस अगर वो बच्चे में लगातार बनी रहती है तो क्या आपका मानना है कि इससे भी बोरिंग नहीं आएगी? यस सर, डेफिनेटली। ये तो सबसे मतलब मेन चीजें होती है कि अगर किसी बच्चे के अंदर जिज्ञासा की भावना होती है तो वो डेफिनेटली हर दिन कुछ नया नया सीखने के चक्कर में डेफिनेटली स्कूल आएगा और अपनी टीचर से उसके रिगार्डिंग क्वेश्चनिंग भी करता रहेगा और कुछ वो तो बहुत अच्छी चीज होती है अकॉर्डिंग टू मी बच्चे। ठीक है, आपने जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन जो है वो अपना कंप्लीट किया है 2013 में। Yes, लेकिन 2013 के बाद में मैं आपके बायोडाटा में देख पा रहा हूँ कि आपने उसके बाद में कोई भी अपना जो एकेडमिक और प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है उसमें आगे कोई भी डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आपने नहीं किया है। हाँ जी सर। तो इसके पीछे के रीज़न क्या है? आपने कहा है कि आप सेल्फ लर्नर हैं और जो है आप लगातार सीखना चाहती हैं और टीचर आप बनना चाहती हैं, तो आपके मन में ये नहीं आया कि आगे भी मुझे अपना एजुकेशन जो है उसको सर कुछ फैमिली इश्यूज हो गए थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो उस टाइम पे जॉब ज़्यादा करने की नीड थी तो इस वजह से पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बट अभी मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की है दोबारा से ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। चलिए, तो पोएम वगैरह तो आपने याद की होंगी, यस सर। तो कोई भी पोएम अगर आप हमें यहाँ पर सिखाना चाहें। यस सर। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। ओके एवरीवन, जस्ट फोकस ऑन मी एंड जस्ट टेल मी कि अर्ली इन द मॉर्निंग आप कितने बजे उठे थे? आज सुबह जब आप उठे थे तो आप कितने बजे उठे थे? मैम मैं 6 बजे उठा था। अरे वाह, वेरी गुड। एंड यू? 5:30। वाओ। एंड यू? वेरी गुड। 6 AM। वेरी गुड। ओके, जस्ट टेल मी, जब आप उठे हैं सुबह तो विच टाइप ऑफ साउंड्स यू आर हियरिंग एट द मॉर्निंग टाइम? जब आप सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग में आपको किस किस तरह की आवाजें सुनने को मिलती हैं? मैडम ची 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 ची। ओके, वो ची 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 किसकी साउंड होती है?
चिड़िया। वेरी गुड, चिड़िया की। और हमारे घर के बाहर ना कुत्ते भी हैं, उनकी भी आवाज आती है। वेरी गुड, तो वो सभी का मतलब हम लोगों की तरह जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है। पर मैम सुबह मम्मी उठाती है, खुद से नहीं उठा जाता, खुद से कैसे उठे? आपको बेटा डेली हैबिट बनानी पड़ेगी। धीरे धीरे जब आप डेली उठोगे, अगर आपसे नहीं उठा जाता तो आप अपने फोन में अलार्म फिक्स कर लो या अपनी वॉच में अलार्म लगा लो ताकि आप जल्दी टाइमली उठ पाओ, ठीक है। तो आज हम एक ऐसे ही फॉर्म करेंगे। चलो फिलहाल 2 मिनट के लिए आप 1 मिनट के लिए आप अपनी आईज क्लोज करो और फील करो कि आप जैसे अभी सुबह उठोगे, ठीक है। जैसे आप अभी अपने स्लीपिंग मोड में हो, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील दैट, ठीक है। और आप मुझे बताओ कि आप जैसे आप आंखें खोलोगे तो मुझे बताना आपको, जैसे आप दोनों ने नहीं बताया तो आपके अड़ोस पड़ोस से किसी की आवाजें नहीं आती। क्लोज योर आईज, ओके, जस्ट ओपन इट एंड टेल मी किस तरह की आवाजें आपको आती है। चलो ओपन योर आईज और बताओ मुझे आपके पड़ोस से कैसी कैसी आवाजें आती हैं नियर अबाउट नेचर से। मैम एक अंकल हैं, वो डेली ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं वो, हैं। आपको कैसी आवाजें आती हैं? बैल की आवाज आती है मैम, वो जो मंदिर की बैल होती है उसकी आवाज। ओके, घंटी की आवाज आती है। चलो आज हम एक ऐसे ही फॉर्म करेंगे जिसमें हम करेंगे कि कोई बच्चा सुबह उठता है तो क्या क्या देखने पड़ता है। चलो आप तो मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, ठीक है। जी मैम। वेक अप, वेक अप, वेक अप, वेक अप। एक्शन भी करना है। वेक अप, वेक अप, वेक अप, वेक अप। इट्स अ लवली डे, इट्स अ लवली डे। वेक अप, वेक अप, वेक अप, वेक अप। इट्स अ लवली डे, इट्स अ लवली डे। oh please get up, Oh please get up. oh please get up and come and play, Oh please get up and come and play. wake up, it's a lovely day, Wake up, it's a lovely day. oh please get up and come and play, Oh please get up and come and play. birds are singing on the trees, Birds are singing on the trees. birds are singing on the trees, Birds are singing on the trees. and you can hear the buzzing bees, And you can hear the birds singing bees. wake up, it's a lovely day. Wake up, it's a lovely day. यहाँ पे वो बच्चा क्या कह रहा है कि उठ जाओ। वेकअप का मतलब क्या होता है? उठ जाओ, इट्स अ लवली डे। आज का जो आपका दिन है वो एक कैसा दिन है? लवली डे है, बहुत ही प्यारा दिन है। और बर्ड्स कहाँ पर सिंग कर रही है? आपने देखा कहाँ पर सिंग कर रही है बर्ड्स? ऑल बर्ड्स आर सिंगिंग ऑन द ट्री। जो पक्षी हैं वो पेड़ के ऊपर बैठ के गा रहे हैं। और यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है हमने, बजिंग। बजिंग का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? जब मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी देखी है आपने कभी? हाँ, तो उसकी जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं बजिंग। अब आगे चले हम जी में। मैम, जी मैम। वेक अप, इट्स अ लवली डे, Wake up, it's a lovely day. ओ आगे ओ, बोलो। ओ। अरे आप आगे बोलो ना, लाइन को कंप्लीट करो। ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, Oh please get up and इट्स टू मच लेट टू लाई इन बेड, it's too much late to lie on the bed. so get up you early head, so hurry up you early head, So hurry up, You early head. wake up, it's a lovely day, Wake up, it's a lovely day. oh please get up and come and play, Oh please get up and come and play. नहीं, बैठ जाइए। अनु, आपने मेंशन किया है कि आपको कंप्यूटर पर आपने कुछ काम किया हुआ है, उससे रिलेटेड आपने कुछ जानकारी ली हुई है, और मैं जैसा देख पा रहा हूँ आपने डिप्लोमा भी किया है आईसीटी में। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गुड। कंप्यूटर की फुल फॉर्म? ये करना चाहिए था। जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं तो अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज करते हैं। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड कौन सा है? प्लेवे मेथड्स। क्या हर एक सिचुएशन में वो वाला मेथड काम आ जाएगा? नो सर, कुछ एक कंडीशंस ऐसे होते हैं, कुछ एक टॉपिक्स होते हैं जहाँ हम उसको यूज नहीं कर सकते, बट हमें ऑलवेज कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव निकालना चाहिए या कुछ ना कुछ ऐसा इनिशिएटिव निकालना चाहिए ताकि मतलब हर टॉपिक से कुछ ना कुछ वर्क करके उसके हम निकाल सकते हैं और उसकी हेल्प से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, मान के चलिए आप एक कक्षा में बैठे हुए हैं, आप पढ़ा रहे हैं और आपकी कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। आपने सोचा कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से आज मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, ठीक है।
आप भौतिक रूप से कक्षा के अंदर क्या बदलाव देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे ताकि आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सक्सेसफुल हो सके? सर क्लास में सब आप बेंचेस की अरेंजमेंट को हम करके थोड़ा सा इसको create किस कर तरीके सकते की अरेंजमेंट? हैं। सर सर्कुलर फॉर्म में कर सकते हैं Very या good. फिर ऐसे मतलब रेक्टेंगल शेप में कर सकते हैं। क्लास में फिर बीच में जो भी हम करना चाहते हैं उसमें उसके थ्रू हम बच्चों को वेरी, कोई ऐसा मेथड बताइए मेरे को टीचिंग मेथड का जिसमें एक कोई भी छात्र जो है वो सोशली, मेंटली, फिजिकली तीनों रूप से बिजी हो जाए, या फिर उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, मतलब इन तीनों डोमेन्स की डेवलपमेंट हो। सर प्लेवे मेथड सबसे अच्छा होता है, उसके थ्रू बच्चा हर तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, उसमें सोशली किस तरीके से होता है? सर हाँ, जब बच्चा अपने मतलब क्लासमेट्स के साथ कोई भी एक्टिविटी करता है या कोई भी काम करता है तो वो सोशली तो इन्वॉल्व हो ही जाता है। और फिजिकली जब वो हैंडवर्क करेगा तो फिजिकली भी इन्वॉल्व हो जाएगा, और मेंटली? जब उस चीज की रिगार्डिंग वो सोचेगा तो वो मेंटली भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। गुड। आपने मेंशन किया था इसमें कि आपको मैथमेटिक्स और ईवीएस पढ़ाना पसंद है। Yes, ईवीएस में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि वाटर साइकिल का आपने जिक्र किया, yes, sir. तो वाटर साइकिल में एक स्टेज आती है कंडेंसेशन, Yes, sir. तो कंडेंसेशन स्टेज क्या है? कंडेंसेशन प्रोसेस वो होती है सर जब हमारा जो इवेपोरेशन जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर चला जाता है वाटर वेपर्स, और जब वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, कूल हो जाता है और उससे जो वाटर की ड्रॉप्स जो बनना शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन प्रोसेस। अच्छा, सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन से सॉलिड का ऑटोमेटिकली गैस की फॉर्म में चेंज हो जाना, उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। और अगर कोई गैसेस पार्टिकल है मेरे पास, उसका डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, उसको क्या कहते हैं? सर, ये नहीं। ठीक है, उसे डिपोजिशन बोलते हैं। बाय द वे, डीएवी पब्लिक स्कूल में आपने टीचिंग की हुई है? सर डैम अच्छा, आपने वो दिया, लेकिन आपने बताया कि आर के पुरम स्कूल में आपने टीचिंग की हुई है। उस टीचिंग के दौरान आपने ईवीएस भी पढ़ाई होगी बच्चों को। ईवीएस पढ़ाने में आपने देखा होगा कि ईवीएस के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं वो थीमेटिक हैं, थीम आधारित है। वो 6 थीम के नाम बता सकती हैं आप मेरे को? सर फूड, वाटर, शेल्टर एंड एनिमल्स। आई थिंक एनिमल नहीं, अलग आता है। एनिमल्स एंड सर अभी रिमाइंड नहीं कर पा रही। कोई दिक्कत नहीं है। ये थीमेटिक अप्रोच क्यों रखी ईवीएस की? क्योंकि सर जो बच्चा होता है एट अ प्राइमरी स्टेज, जो उसकी मेनली जो उसकी सराउंडिंग्स होती है वो उन 6 चीज़ों के ही सराउंड घूमती रहती है। तो अगर हम बच्चे को उसको थीमेटिकल बेस से पढ़ाएं या उसकी सराउंडिंग्स को ही एक बेस बना के पढ़ाएं तो बच्चा ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है। इसमें बीओडी के बारे में आप कुछ बताएंगे मेरे को? सर मैं भी रिकॉल नहीं कर पा। ओके, नो प्रॉब्लम। मछली होती है, यस सर। पानी के अंदर रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि पूरी की पूरी लेक बर्फ में बदल जाती है, लेकिन मछलियां फिर भी जीवित रहती हैं उसके अंदर। वो कैसे रह पाती हैं? सर जो पानी के अंदर ऑक्सीजन का जो मतलब जो उसकी क्वांटिटी होती है वो बर्फ बने या फिर वो पानी रहे, वो तो क्वांटिटी उतनी रहती है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। पर नहीं, मछलियां चल पाती हैं, फिर पाती हैं बकायदा। लेयर जब सर, जमती ऊपर है, लेयर होती है लेकिन धरती के अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है वो इतना ठंडा नहीं होता, तो धरती की मतलब बर्फ के नीचे पानी होता है जिसकी वजह से मछलियां वहां तो सर्वाइव। आपका कहना है कि पानी जो है वो ठंडा नहीं होता उतना? मेरे कहने का मतलब है कि जो सरफेस वाटर होता है वहां पर आइस जम जाती है, लेकिन जो ओशन का जो बॉटम लेवल होता है वो अंडरग्राउंड होता है, तो वहां पे पानी रहता है जिसकी वजह से मछलियां वहां रहती हैं। वैसे नीचे के सरफेस का टेम्परेचर क्यों चेंज नहीं होता, कुछ बता पाएंगे आप? क्योंकि हमारी जो अर्थ होती है वो मेनली 3 उसमें होती है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो हमारी क्रस्ट हमारी ऊपर वाली होती है, मेंटल जो कोर होती है वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कोर का तो। पर अनु, ये जो हमारी जो लेक है, समुद्र है, ये तो आपको भी पता है कि मेंटल कोर तक तो पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो टॉप क्रस्ट लेवल तक ही सीमित रहती है सारी चीजें। तो नीचे तक का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तो सारे समुद्र अब तक उबल जाते अगर इतना फर्क होता। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए एक लेक भी है, लेक अगर मान के चलिए पूरी तरीके से बर्फ में कन्वर्ट हो गई, उसके अंदर की मछलियां जीवित रहेंगी। आपके गांव में पोखर है? आपके गांव में पोखर है? अगर बहुत ठंड पड़ रही है, मान के चलिए -1 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, पूरी पोखर जम गई, लेकिन उसके नीचे की मछलियां फिर भी नहीं मरेंगी, वो जीवित रहेंगी। कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम।
आपकी कक्षा में कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्र बैठे हुए हैं, यस सर, आप जानती हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में? यस सर। क्या होती है लर्निंग डिसेबिलिटी? सर बच्चे को जब भी कोई लर्निंग में प्रॉब्लम आ सकती है, वो कई तरीके से हो सकती है। हो सकता है उसको वर्ड्स लिखने में प्रॉब्लम हो सकता है उसको सीखने में प्रॉब्लम हो सकता है उसको मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है उसको स्पोकन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्टैमरिंग हो। तो इस तरह की जितनी भी डिसेबिलिटीज आती है सब उसमें आती है। तो वो जो डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, आप उस बच्चे को मेन स्ट्रीम में कैसे कनेक्ट कर पाएंगी? मान के चलिए आपकी कक्षा में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो बहुत धीमे से सीखता है, आप उसको कैसे मेन स्ट्रीम में जोड़ पाएंगे कि वो बाकी बच्चों के साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन ले पाए? सर उसके लिए जो भी फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो बच्चा है उसको जिस तरह की प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से इवेल्युएट करेंगे। उसका प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए उससे रिलेटेड जो भी एड्स होती हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका यूज करके हम उसको बाकी बच्चों के साथ लेके आ सकते हैं। ये एड्स कौन कौन सी हो सकती हैं? सर अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो हम उसको विजुअल वाली दिखा सकते हैं, वीडियोस वगैरह दिखा सकते हैं ताकि बच्चे को, अगर उसको हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको हम साइन लैंग्वेज के थ्रू समझा सकते हैं। बहुत बढ़िया। कंप्यूटर में एक वर्ड आता है डार्क नेट, बहुत ज्यादा फेमस है, नहीं जानती? डार्क वेब नहीं जानती, कोई दिक्कत नहीं। आईपी VPN नहीं जानती। अच्छा, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में कुछ पता हो? यस सर, 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क जी बताइए। NPN, WPN एंड लैन, वैन और पैन। वेरी गुड। कुछ फर्क ये रिकॉल कर पा रही हैं आप इनके बीच में? छोटे लेवल पर होते हैं, थोड़े बड़े लेवल पर होते हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल पर होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरे को एक छोटी सी चीज जाननी है, ऑनलाइन एजुकेशन में और ऑफलाइन एजुकेशन में दोनों में से आपको कौन सी एजुकेशन ज्यादा अच्छी लगती है और क्यों? सर ऑफलाइन एजुकेशन बेटर होती है ऑनलाइन के कंपैरेटिव। और ऐसा क्यों है? सर क्योंकि ऑनलाइन में हम बच्चे के साथ कनेक्टेड नहीं होते, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें बच्चे के साथ मतलब रिलेट करके या बच्चे के साथ रह के ही समझनी पड़ती है। ऑनलाइन में हम बच्चे के साथ वो कनेक्शंस नहीं बना पाते, वो चीजें नहीं समझ पाते, तो इसलिए हमें ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन पे जाना होता है। बिल्कुल। जब आप KVS में टीचर मान के चलिए आप बन गई हैं, ठीक है, अब इलेक्शन का टाइम आया है, Yes, टीचरों की नौकरी लगती है, जॉब लगती है, इलेक्शन कराने में उनकी ड्यूटी आती है। yes, आपसे पॉलिटिकल पार्टी, एक्स पॉलिटिकल पार्टी आके कहती है कि आपको उस बूथ पर, उस स्पेसिफिक बूथ पर yes. हमारे लिए वोट डलवानी है। आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल आउट करेंगे एज अ टीचर? सर सबसे पहले तो उनको मना ही कर देंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स के अगेंस्ट होता है, या जो मेरा Yes. खुद का स्वाभिमान है ये भी उस चीज के अगेंस्ट है। तो वेरी गुड। उनको क्लियरली मना कर देंगे। NEP और NCF में कोई फर्क आप बता पाए? सर नेशनल NEP का मतलब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जब भी हम कोई पॉलिसी निकालते हैं उसके अंदर कोई लैकुना से कोई कमी वगैरह रहती है तो उसको हम फिर करिकुलम के अकॉर्डिंग जो भी उसमें रेक्टिफिकेशन होते हैं वो करने के लिए हम NCF निकालते हैं। अच्छा, ये सर कुछ मेन पॉइंट्स थे। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में ना पेरेंट्स को एक ट्यूशन देने की होड़ सी चल गई है कि ट्यूशन जरूर देना है बच्चों को, Yes, sir. बिना ट्यूशन के काम नहीं चल रहा है। Yes. आप ट्यूशन को ठीक मानती हैं, गलत मानती हैं? सर मेरे अकॉर्डिंग ट्यूशन गलत होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी वो ठीक नहीं है। और उसके पीछे रीजन आप बता पाएंगे आप? सर रीजन होता है कि अगर मतलब आजकल एक मीथ चल गई है, पेरेंट्स में मीथ्स होती है कि भाई कि अगर उसका बच्चा ट्यूशन जा रहा है तो हम भी अपने बच्चे को ट्यूशन भेजेंगे, हम भी अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। तो ये सबसे पहले तो एक पेरेंट को समझनी चाहिए कि अगर उसके बच्चे के अंदर कोई कमी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो टीचर से जाके डायरेक्ट कांटेक्ट करे, इंस्टेड की बाहर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना सोचे कि जहाँ उसके बच्चे की कमी को दूर किया जाए। ओजोन लेयर के बारे में जानती हैं आप? यस सर। किससे बचाती है ओजोन लेयर हमें? यूवी अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है। ओजोन लेयर की मोटाई को किस यूनिट में मापा जाता है? सर रिकॉल नहीं कर पा रही। कोई बात नहीं, थैंक यू। अनु, हमारी कौन सी एजुकेशन पॉलिसी है जिसने कंप्यूटर एजुकेशन पे फोकस किया? आज सर सबसे पहले तो 1986 वाली में फोकस किया था, लेकिन वहाँ पर कंप्लीट वर्क नहीं हो पाया था, जो कि 2020 वाली थी उसके ऊपर जितनी भी कमियां उनके ऊपर वर्क किया। 1968 में प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। और सबसे पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। तो 1964 टू 66 में क्या आया था? सर एक्ट आया था उसके ऊपर, एक्ट आने के बाद फिर मे भी शायद पॉलिसी हुई, श्योर नहीं सर। ठीक है, अभी NCF 2023 आया है,
अभी कुछ दिन पहले ही NCERT की ओर से एक नया ड्राफ्ट रिलीज किया गया है अपनी वेबसाइट पे हम सभी देशवासियों के लिए कि आप उसे पढ़ें, देखें, जानें उसमें क्या कुछ दिया गया है स्कूल एजुकेशन को लेकर के। और ये सबको कहा गया है कि आप कंट्री में स्कूल एजुकेशन के बेटरमेंट के लिए अपनी ओर से भी कुछ सुझाव दें। तो क्या आप सुझाव देना चाहेंगी? हाँ सर, सबसे पहले मैं उसके गो थ्रू होना चाहूँगी। गो थ्रू होने के बाद मैं अपने जो भी मुझे लगेगा कि मुझे भी व्यूज़ देने चाहिए उसके बाद में उसको दूँगी। अभी तक NCF कितनी बार आया है? सर अभी तक NCF मे बी 2 times आया है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कंप्यूटर एजुकेशन से ही रिलेटेड आपने जिक्र किया है कि आप कंप्यूटर एजुकेशन की ओर थोड़ा सा इंक्लाइन है और आपका काफ़ी इंटरेस्ट भी है, काफ़ी कुछ आपने कंप्यूटर से रिलेटेड गेन भी किया है। Yes, sir। तो जो वर्चुअल क्लासरूम हैं उनसे हम कौन से लर्निंग डोमेन को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं? सर सबसे पहले तो कनेक्ट नहीं हो पाता, बच्चे का और टीचर का कनेक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चा सोशली नहीं हो पा रहा है। सबसे जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, और आजकल हमने देखा है कि आपने देखा भी होगा कि बच्चे मोबाइल के साथ ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं। तो जब बच्चा सोशली किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपना एक ग्रुपिज्म देखेगा, अपने आप को कंफर्टेबल फील कराएगा। तो इस वजह से बच्चे फ़ोन के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो सबसे जो बड़ी कमी है वो सोशली जो उनकी आई है अकॉर्डिंग टू मी वर्चुअल क्लासेस के। एजुकेशन टेक्नोलॉजी की अप्रोचेस कितनी है? ठीक है, एक मेरा प्रश्न है आपसे एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका एज ग्रुप क्या है? सर उसका एज ग्रुप एलिमेंट्री एजुकेशन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आ गई। हाँ, एज ग्रुप एलिमेंट्री एजुकेशन का क्या है? सर जो अभी नहीं आई है उसका तो हमारा 3 to 8 है, 3 to 8 है। ठीक है, बाल वाटिका क्या है? सर बाल वाटिका इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें हम बच्चे को एक्टिविटीज वगैरह करा सकते हैं, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को, जिसमें हम उनको प्लेग्राउंड में या कहीं भी बाहर विजिट वगैरह करा के उनको ये सारी चीजें सिखा सकते हैं। उसको हम बाल वाटिका के अंदर ले गए थे, मे बी 2013 में इसको लॉन्च किया। कौन लेके आया था? सर ये नहीं पता, शायद KVS की संस्था ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, आपने अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले मदरहुड टर्म का जिक्र किया था। Yes, sir। तो जो प्राइमरी टीचर होते हैं वो आपका क्या मानना है कि पुरुष होने चाहिए या महिलाएं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? सर मेरे अनुसार जो बच्चा होता है सबसे पहले जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल आता है तो वो अपनी माँ से दूर होता है और अर्ली स्टेज में बच्चा अपनी माँ के ज़्यादा पास होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो फीमेल के अंदर जो एक मदरहुड की भावना होती है, हो सकता है मेल्स में भी हो, बट अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे देखें तो लेडीज़ के मतलब फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है। तो अकॉर्डिंग टू मी फीमेल टीचर्स के अंदर ज़्यादा। तो आपका क्या कहना है कि हमें आपको ही अपॉइंट करना चाहिए, आपको ही सिलेक्ट करना चाहिए? अगर हमारे पास एक सीट है और इसके लिए आप 2 कैंडिडेट हैं, एक आप हैं और एक और कोई अन्य व्यक्ति हैं, मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए, उनको रहने देना चाहिए? मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए हमें आपको सिलेक्ट, क्या रीजन है? सर सबसे पहले तो मेरे अंदर जो मतलब कि सबसे पहले तो मेरे अंदर एक मदरहुड की भावना भी है जिससे मैं बच्चों को सिखा सकती हूँ। मैं बच्चों को उनका एक मतलब बच्चों को और ज़्यादा एक माहौल ऐसा क्रिएट देना चाहती हूँ, बच्चों को उनको बड़े अच्छे से समझा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ और पेशेंसफुल पढ़ाऊंगी, जो कि एक मेरे अकॉर्डिंग मेल्स में पेशेंस थोड़ा कम होता है इन कंपैरेटिव ऑफ फीमेल्स। काम नेचर होना चाहिए छोटे बच्चों को टीच करने के लिए, मेरे अंदर वो भी एक क्वालिटी है। तो क्या ये आपकी एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग नहीं है कि जो है मेरे अंदर ही मदरहुड का भाव? आपने कहा कि जो पुरुष हैं उनके अंदर भी हो सकता है, बट आप थोड़ा सा इंक्लाइन है अपनी ओर की मैं ही उनके लिए बेटर हूँ। तो जो टीचर्स हैं क्या उनमें भी रूढ़िवादी सिद्धांत, रूढ़िवादी सोच के अनुसार उनके व्यवहार हमें देखने को मिलते हैं? और मिलते हैं तो क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? सर अगर ऐसा है तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ये गलत होता है। मतलब रूढ़िवादी विचारधारा किसी भी टीचर के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सर मैं अपने आप को बेस्ट उनसे दिखाऊंगी तो मुझे अपना बेस्ट पॉइंट बताना पड़ेगा कि मैं उनसे इन चीज़ों में बेस्ट हूँ, इसलिए आप मुझे चूज़ कीजिए। मैं आपको ना एक सिचुएशन देना चाहूँगा अभी। जैसे अभी आपने कहा कि रेसलिंग जो है वो आपका प्रोफेशन रहा है, मतलब कह सकते हैं उसको आपका मतलब आपको रुचि है कि हाँ मेरे को रेसलिंग करनी है। और अगर
मैं सोचता हूँ कि अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे होते तो आप इसको एज अ प्रोफेशन चूज़ करते। तो मान लीजिए आप केवी के टीचर बन गए हैं एंड अब भाई आपने बताया आपके फादर भी आपको सपोर्ट करने लगे, आपके भाई बहन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका कॉल आता है एक दिन और वो कहते हैं कि अनु मतलब बेटा अब तू ना ऐसा कर कि तू अपना सपना जी, ठीक, और तू रेसलिंग जो है वो स्टार्ट कर दे और आजा सीखने, आजा हरियाणा वापस आजा, और आपकी पोस्टिंग कहीं और है, तो उसके लिए आपको अपनी केवी की जॉब को क्विट करना पड़ रहा है, तो आपका डिसीज़न क्या होगा? हाँ सर, सबसे पहले तो रेसलिंग सीखने की एक एज होती है, जब हमारी बोन्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है तभी हम उसको सीख सकते हैं। एक एज जाने के बाद हम रेसलिंग नहीं सीख सकते, तो सबसे पहले तो वो डिसीजन वही खत्म हो जाएगा कि मैं रेसलिंग सीख ही नहीं सकती, क्योंकि अब उस सिचुएशन में, उस एज में मैं हूँ ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैम बट ऐसा हो नहीं सकता ना, उसके लिए मतलब हो ही नहीं सकता। Flexibility is not the only thing which is required. There are other components also which are required. You require strength, you require endurance, which we can say stamina. बट मैम तो- एज इज ऑल्सो मैटर ना। But your parents feel that you can do and bring glory to the nation. अनु, जैसा हम देख पा रहे हैं, आपने अभी एज के बारे में बात करी, हम इसको अभी ये मानकर चलते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है, देन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि तो आपका डिसीज़न क्या होगा कि आप एलिजिबल भी हैं और मतलब आपके फादर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरीके से आपका ड्रीम रहा है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले आपका मेन था कि मुझे रेसलिंग ज्वाइन करना है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको वो ड्रीम, अपना जो सपना है वो जीने को मिल रहा है, तो आप अपनी केवी की जो जॉब है उसको क्विट करेंगे या नहीं करेंगे? डिसीजन क्या रहेगा आपका? क्विट नहीं करेंगे, जो हमारा बाद में सेपरेट टाइम होता है, उस टाइम पे अगर मैं अपने पैशन को या अपने ड्रीम को जीना चाहती हूँ तो उस टाइम पे मैं उसकी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। अच्छा, यस सर, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि हमें पूरा दिन देना होता है, एटलीस्ट 3 और 4 आवर्स की हमें प्रैक्टिस करनी होती है। उस टाइम पे अगर मैं चाहूँ तो अपना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के भी गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनके थ्रू मैं अपने ड्रीम को आगे लेके जा सकती हूँ अलॉन्ग विद माई टीचिंग। अनु, आप केंद्रीय विद्यालय में ही एज अ टीचर काम करना चाहते हैं या फिर इसके अलावा और कहीं स्टेट लेवल पे भी आप जॉब चाहती हैं या उसके लिए भी आप प्रयास कर रही हैं? नहीं सर, सिर्फ मैं केवी में ही एज अ टीचर रहना चाहती हूँ। और अगर आपकी केवी में जॉब लग जाती है, आप केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं और 2 साल के बाद में यस सर, कहीं और किसी स्टेट लेवल पे वैकेंसी आती है, आप हरियाणा से हैं, दिल्ली आपके नज़दीक हैं, या तो आपके होम स्टेट में ही या आपके बगल में ही दिल्ली है, वहाँ पर वैकेंसी आती है और आप अप्लाई करते हैं, वहाँ पर आप एग्ज़ाम देते हैं, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो क्या आप फिर केंद्रीय विद्यालय से रिज़ाइन करके चले जाएंगे? नहीं सर, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि मुझे अलग अलग कल्चर्स को सीखने का, इन सब चीज़ों का बड़ा शौक है। तो अगर मुझे अपना अगर मेरी ड्रीम्स पूरी हो रही हैं, जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल रहा है, तो मैं उस चीज़ को क्विट नहीं करूँगी। मुझे थ्रू आउट द लाइफ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो मैं अपनी जॉब, जो केवी की जॉब है, उसको ही कंटिन्यू करूँगी, मैं अपनी स्टेट जॉब को ज्वाइन नहीं करूँगी। तो आपकी जो पोस्टिंग है वो कुछ ऐसे एरियाज में भी आ सकती है जहाँ पर कल को आपकी फैमिली आपको भेजना ना चाहे, आपकी फैमिली आपको कहे कि नहीं आप वहाँ मत जाइए, और आपका जब सिलेक्शन यहाँ हो चुका है तो आप वापस यहीं पर आ जाइए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें आउट ऑफ कंफर्ट भी जाना होता है और आपके लिए सिचुएशन ऐसी है कि आपको कंफर्ट जोन के बाहर जाना पड़ रहा है, उस वक्त भी आप बने रहेंगे केंद्रीय विद्यालय के साथ? नहीं, बनी रहूंगी और पेरेंट्स को कन्वीनियंस करेंगे, उनको मनाएंगे कि नहीं हमें वही करना है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत किया, वो हमें मिल रहा है, तो अब उसको छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना ठीक नहीं। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है इस इंटरव्यू में। आपका जो टीचिंग करियर है वो बहुत अच्छे से चल रहा है और एक समय ऐसा आता है कि आपके स्कूल में आपको कुछ प्रॉब्लम होने लगती हैं, और जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए आप अपने जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद में आपके स्कूल में जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी के सामने भी आप जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, लेकिन आपको कोई समाधान मिल नहीं रहा है और आपकी प्रॉब्लम जो है वो लगातार बनी हुई है। और अब आपके सामने सिचुएशन ये है कि आप उस कमेटी से बाहर कहीं जाएं जहां से आपको हेल्प मिल सके, और आपकी जो प्रॉब्लम बनी हुई है वो स्कूल की ही वजह से बनी हुई है, तब आप कहां जाकर के शिकायत करेंगे या किसके पास आप अपनी बातों को लेकर जाएंगे? सर, सबसे पहले तो जो हमारा स्कूल है, स्कूल में जो प्रिंसिपल्स होते हैं या जो उनके हेड होते हैं, सबसे पहले तो जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हैं मैं उनके साथ डिस्कस करूंगी। अगर मुझे मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहां से मिल जाता है तो डेफिनेटली गुड है,
और कहीं ना कहीं मैं ये भी देखूंगी कि कहीं उसके अंदर कोई मेरी प्रॉब्लम की या मेरी कोई कमी तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे ही प्रॉब्लम आ रही हो। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर प्रिंसिपल से ही सॉल्यूशन मिल जाता तो आगे कहीं जाने की नीड ही नहीं। नहीं, आपको स्कूल से तो सोल्यूशन मिला ही नहीं, और जो कमेटी बनी हुई है आपके स्कूल में, उस कमेटी में प्रिंसिपल भी हैं और उस कमेटी से आपको सोल्यूशन मिला नहीं है। अब आपको कमेटी से बाहर, आपको स्कूल से बाहर जाना होगा, तब आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे आप? सर जो वहाँ का जोन वाला हेड होता है, फिर वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को रखेंगे कि ये प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर जो भी उनको ठीक है। ठीक है अनु, इसके लिए आप एक काम कर सकेंगे। कल को अगर आप जो हैं केंद्रीय विद्यालय में काम कर रहे हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ग्रीवेंस पोर्टल है, आप उस पोर्टल पे जाएंगे और वहाँ जाकर के आप जिक्र कर सकते हैं कि इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको वहाँ से अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो पहले तो मतलब इसमें ना अपने जो इंट्रो है उसमें मतलब मेरी ये सलाह रहेगी कि जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो हटा दीजिए, बिकॉज कंप्यूटर की नॉलेज बहुत वास्ट होनी चाहिए और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब कोई एंड नहीं है उसका, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो मतलब इसमें जो मेंशन करो वो वही सब्जेक्ट करो। जैसे आपका मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स इसमें मेंशन करो कि आई एम वेरी गुड एट मैथ्स, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपने बहुत अच्छा किया, बढ़िया बोला। ट्यूशन वाला जो क्वेश्चन था ठीक था, अच्छे से आपने कैलकुलेटिव रिस्क लेके उसे कर दिया। पोएम टीचिंग आपकी एक्सीलेंट थी, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मैथ्स की टीचिंग में बस एक ही था, जब आप शायद पहली बार टीचिंग कर रही थी तो इसलिए थोड़ा हेजिटेट आपने किया, बट हाँ बाकी सारी चीज़ें ठीक थी। ऐसा नहीं था कि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। अपनी स्टोरी बिल्डिंग की, दैट वाज आल्सो गुड, ठीक है। थोड़ा मेरा जो है इंटरपर्सनल जो स्किल्स वाला जो क्वेश्चन मैम ने भी कई पूछे आपसे, ठीक है। उधर जैसे मैम आपसे स्किल्स की पूछ रही थी, जैसे कि पेंटिंग कौन सी, क्योंकि आपने पेंटिंग मेंशन किया तो आपको फाइन मोटर स्किल्स रहते हैं, ये सब पता होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो वो थोड़े से क्वेश्चन और मैम आपको बताएंगी। बाकी मेरा था कि पर्सनल लेवल पर अगर मैं बात करूँ, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है। पर्सनल लेवल पे कोशिश कीजिएगा, क्लॉथिंग अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस थोड़ा स्ट्रेट बैठना है आपको। जैसे आप एक साइड की ओर झुकी हुई है वो थोड़ा सा मतलब कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ठीक बीच में बैठें। बाकी इंट्रो आपका सही है, मेरी ओर से ही है। ऑल द बेस्ट। So Anu, in one word I would say well done. You did well, but some of the suggestions which I would like to give you are कि in between you were changing your facial expressions, मतलब they were like कब तक चलेगा, कितनी देर और ऐसे बैठा रहना पड़ेगा। Do not try to maintain a uniform facial expressions. Plus apart from that your knowledge is good in all the areas. If I talk about communication, it was good, but जब आप डेमो टीचिंग कर रहे थे तो अच्छा था, क्लियर था, but your voice should be such that the other class doesn't get disturbed. वो इतना लाउड भी नहीं होना चाहिए कि साइड वाली क्लास के बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें अच्छी थी। और when you sit on the chair, do not slouch forward, sit straight. If you feel like that you have to turn towards any of the board members, then you can rotate the chair rather than just slouching on either one side. Other things are, when you are writing on the board, try to make sure that the board is visible to the students. You do not cover it up. Okay. Otherwise, rest all the things were good. Thank you, ma'am. अभी इसमें ना बस थोड़ा सा यही है कि आपका फर्स्ट इंटरव्यू है ना, पहला ही है, तो इसमें है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बस थोड़ा सा कम था। धीरे धीरे जैसे मैंने देखा कि वो धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन फिर से वही वाली बात जो मैम ने कहा ना कि आपको ये था कि जल्दी से ख़त्म हो जाए इंटरव्यू। एक्चुअली क्या था ना कि मैं काफ़ी देर से बैठी थी तो हाँ। मुझे ना थोड़ा सा फील हो रहा था, नर्वस हो रहा था, तो उसकी वजह से थोड़ा फेस ऐसा। Did you eat something before coming? हाँ, कुछ खा कर जाना है आपने ज़रूर। तो थोड़ा नर्वस हो रहा था, थोड़ा पेट में पेन सा हो रहा था, वो हेजिटेशन की वजह से। Do deep breathing. क्योंकि डीप ब्रीदिंग करिए। इसमें ये भी होगा कि अभी आपका इंटरव्यू है, वहाँ पर भी आपको बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ सकता है। इवन आप फिर आपको अंदर भी बहुत लंबे टाइम तक बैठना पड़ सकता है। तो ये टाइम जो है ना,
ये बहुत ज़्यादा लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका लाइक 5 मिनट 10 मिनट या 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है आप दिन में मॉर्निंग में आते हैं और इवनिंग में आपका नंबर आ रहा है। तो इस सारी सिचुएशन से डील करके आप वैसे चलें। ओवरऑल इट्स गुड, ठीक है। थोड़ा सा देखिए नॉलेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसको आप थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं। ऐसा लोकेश सर ने कहा, आप वही चीज़ मेंशन करो रेज्यूमे में जिसके ऊपर आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ यहाँ से मुझे क्वेश्चंस पूछ ले जाएंगे तो मैं आंसर कर पाऊंगी। बाकी जो आपको आंसर नहीं आता था आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नो कहा, दैट्स गुड, है ना। कभी कोई चीज़ ऐसा मत कहिए, जैसे आपने कुछ चीज़ें गलत भी कहीं तो वो आप मत कहिए। अगर आपको नहीं आता तो उसमें भी आप कह दीजिए कि सर ये मुझे नहीं पता, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड और कॉन्फिडेंट रहिए, और चेहरे पर थोड़ी वो जो स्माइल है ना वो होनी चाहिए। ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा टेंस हो, है ना। टेंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पैनल वहाँ पर रहेगा आपको ऐसे ही कंसिडर करने की वो स्टूडेंट्स हैं, दैट्स इट। जी जैसे और स्पीड को भी थोड़ा सा कम रखिए, बोलने की जो स्पीड है ना आपकी। मुझे स्कूल में भी सेम प्रॉब्लम रहती थी, जब हम वहाँ पे भी टीचिंग करते थे स्पीड की मुझे प्रॉब्लम रहती है। ट्राई करिए, कोशिश करिए, ट्राई टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो भी आपको नॉलेज है इन फ्रंट ऑफ द मिरर आप उसको प्रैक्टिस करिए, और थोड़ा सा आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, या फिर बिफोर एंटरिंग द रूम you can involve yourself into deep breathing, that would help you to a great extent। और NCERT की फुल फॉर्म तो आपको बिल्कुल क्लियरली पता होनी ही चाहिए। मैम याद थी वो एकदम से जैसे बोलते हैं। हाँ, तो डू नॉट गेट एंशियस। एक ब्लैक बोर्ड स्किल पे आप काम जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक एक चीज़ वहाँ नोट की जाएगी कि आपने लिखना शुरू कहाँ से किया है। तो ध्यान जरूर रखिएगा जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जिस भी टॉपिक आप शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि जहाँ भी आपका मन किया आपने वहीं पर लिख दिया है। तो बोर्ड स्किल्स पर आप थोड़ा सा काम अपना कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में अभी जैसा कि मैडम ने भी जिक्र किया है NCERT की फुल फॉर्म का, ना केवल NCERT की फुल फॉर्म बल्कि आपको एजुकेशन रिलेटेड जितने भी एक्रोनियम हैं सब के बारे में पता होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बता भी देता हूँ, जो हमारी NEP 2020 आई थी, इसके बाद में फिर हमारा NCF आया था 2022, यानी कि NCF 2022 जो कि फाउंडेशनल स्टेज के लिए है। उसकी बुक आपको मिल जाएगी NCERT की वेबसाइट से, उसको डाउनलोड करें और उसमें आप देखेंगे कि सारी की सारी वो फुल फॉर्म आपको एक्रोनिम्स आपको दिए हुए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। आप उनको पढ़े वहाँ से, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से प्रश्न। उसके बाद में जो हमारे लेटेस्ट स्कीम है और गवर्नमेंट इस वक्त एजुकेशन के फील्ड में क्या कुछ कर रही है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। NCF रिलेटेड, NEP रिलेटेड यहाँ पर आपको थोड़ा सा कम इन्फॉर्मेशन है, और इसके बारे में आप अगर इम्प्रूव करेंगे खुद को तो ओवरऑल बाकी सब चीज़ें बेटर हैं। और ऑल द बेस्ट हमारी ओर से। आप एक और चीज़ मेरे वो ये है कि जो ये है ना आपका इंट्रो था उसमें थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, उसके लिए एक टूल होता है ग्रामरली करके, ऑनलाइन टूल है। आप पूरा सेंटेंस उसमें डालिए तो वो ठीक करके दे देगा आपको। ये बिल्कुल मतलब ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कल रात को ही मैसेज मिला। वही है कि मतलब वहाँ पे जब जाए तो ये ठीक होना चाहिए। ये मेरी ओर से फीडबैक वगैरह सब लिखा हुआ है इसमें यार। थैंक यू सर, थैंक यू।